پنجتن پاک کا لفظ جو ہے ایک بہت بڑی گالی ہے حضور کے صحابہ کو کہ صرف یہ 5 پاک ہیں باقی ناپاک ہیں۔ ان کا عقیدے میں یہی ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صرف یہ 5 پاک ہیں۔ بھائی پھر حسن حسین کی اولادیں وہ بھی ناپاک ہیں، حضرت علی کی اولادیں، حضرت عباس کی اولادیں، حضرت فضل کی اولادیں، حضرت جعفر کی اولادیں، حضور کی ازواج مطہرات جن کو اللہ نے قرآن میں پاک کہا ہے۔ ایسے ہی 5 تن پاک، اور بھائی 5 تن پاک نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں اور باپ یہ بھی 5 تن پاک، نبی کی تمام بیویاں بولیے پاک، سارے نبی نہیں پاک، نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ نہیں پاک، عیسیٰ نہیں پاک، حضرت نوح نہیں پاک، ابراہیم اسماعیل نہیں پاک، یہ پاک باز ہیں، پاک تر ہیں، پاکوں کے سردار ہیں۔ تو صرف 5 تن پاک یہ سارے فیبریکیٹڈ مصنوعی نظریات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پہ آپ کسی شیعہ کو کہیں کہ یہ جو عقیدہ امامت ہے کہ 14 امام ہے قرآن میں، کدھر ہے نام؟ 12 معصوم ہے، کدھر ہے نام؟ 5 تن پاک کدھر ہے قرآن میں؟ جن کی بنیادوں پہ تم کافر کافر کہتے ہو، کدھر ہیں یہ چیزیں ساری؟ تو یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہاں تو لاجواب ہو جاتے ہیں، تو یا کیا کہتے ہیں عثمان نے قرآن کو جمع کیا اور نعوذ باللہ ان چیزوں کو باہر نکال دیا۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ 5 تن پاک وہ بھی ویسے فارسی کی ٹرم ہی ہے، ہر 4 یار وہ بھی عربی کی تو نہیں ہے، اور 5 تن پاک جو ہے یہ بھی مطلب فارسی میں بولا جاتا ہے یا پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے، اردو میں بھی یہ ٹرم چلتی ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں، اور یہ حدیث سنی اور شیعہ کے درمیان کامن حدیث ہے، اسے کہتے ہیں حدیث قصہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، منکش، جس پہ اونٹ کے جو کجاوے ہیں ہنڈیا کی شکل کے، اس پہ پرنٹ بنے ہوئے تھے، کالے کلر کی چادر۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا، پھر سیدنا حسین ابن علی آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے کیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی چادر کے نیچے کیا، اور پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آئے، ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے اندر کیا۔ 5ویں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی مبارک ذات، بلکہ پہلی آپ کی اور باقی 4، تو یہ ٹوٹل بن گئے 5۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ جابر بن عبداللہ انصاری یہ وہ مخصوص ترین آل محمد کا صحابی ہے جس نے 5 محمدوں کی خدمت کی ہے، جس نے پہلے محمد کا سلام 5ویں محمد تک پہنچا ہے، رسالت ماب کا دور دیکھا ہے، علی کی صحبت میں زندگی گزاری ہے، حسن کی غلامی کی ہے، حسین کی نوکری کی ہے، مولا سجاد کے ساتھ رہے ہیں، سرکار باقر کے ساتھ رہے ہیں۔ جناب رسالت ماب مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یا جابر مسجد میں داخل ہوا، مولا نے صحابہ سے کہا رستہ دو جابر کو۔ جابر کو رستہ ملا، رسول نے بالکل قریب بلایا، جب جابر بالکل قریب آیا رسول نے کہا میرے قریب بیٹھ، جابر بیٹھا، رسول نے جابر کا سر پکڑ کے اپنے زانوں پہ رکھا۔ قسمت دیکھ صحابے کی، رسالت ماب نے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، اس نے آنکھیں بند کر کے خوشبوئے رسالت کو سونگا، اس کی آنکھ میں خوشی کا آنسو آیا، آنسو ابھی داڑھی تک نہیں پہنچا یا رسول نے ہاتھ سے آنسو کو روکا، روک کہا تجھے ایک اہم ذمہ داری دینے لگا ہوں۔ مولا حکم فرمایا جب ممبر پہ میرا ایک بیٹا دیکھے جس کا نام میرے نام جیسا ہو، اسے کہنا نانا سلام کہہ رہا تھا۔ جب تو ایک میرا ایسا بیٹا دیکھے جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہو اور وہ ممبر پہ بیٹھا ہو، تو اسے کہنا رسول سلام کہہ رہا تھا۔ یہی جناب جابر جب سرکار امام باقر کی بارگاہ میں پہنچے تو مدینے کی اسی مسجد کے اسی ممبر پہ سرکار باقر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جناب جابر ضعیف ہو چکے تھے، کمر جھک گئی تھی، کمر میں خم آ گیا تھا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو رہی تھی۔ جب مسجد میں داخل ہوئے جناب سرکار باقر علوم نے کہا جابر کو رستہ دو۔ لوگوں نے نبی کا صحابی سمجھ کے احتراماً اٹھے، پکڑ کے مولا کے قریب لے کے آئے، جناب جابر مولا کے قریب بیٹھ گئے، سرکار باقر نے سر پکڑ کے وہیں رکھا جہاں رسالت ماب نے رکھا تھا۔ جابر نے آنکھیں بند کر کے مدت کے بعد پھر وہی خوشبو محسوس کی۔
जाबर की आंख में खुशी का आंसू अभी दाढ़ी तक नहीं पहुंचा था, सरकार बाकर ने हाथ रखा, हाथ रखेगा रोएगा, नाने का सलाम नहीं देगा। ये नबी का वो सहाबी है। इसकी दूसरी सिफ्त ये है, ये कब्र हुसैन का पहला मुजावर है। जब रिसालत इमाम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे थे तो नासरीन मोहम्मद में से जनाब जाबर का नाम था। जनाब जाबर ने अपने माँ बाप कुर्बान किए हैं इस्लाम के लिए। जनाब जाबर अब्दुल्ला के बेटे थे, कब्र हुसैन के पहले मुजावर थे। जब मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा तब ये हिजरत के लिए गए हुए थे, अपनी तजारत की गर्ज से ये मदीने से बाहर थे। जब ये पहुंचे तो इन्हें खबर हुई कि रसूल का बेटा मदीना छोड़ चुका है, तो ये रिसालत माप के फर्जंद के पीछे मदीना से चले। लेकिन जब ये करबला पहुंचे तो इनकी करबला में आमद किताबें कहती 17 सफ़र हुआ है। जब ये 17 सफ़र को करबला में पहुंचे हैं तो फिर ये कब्र हुसैन पे बैठ गए। फिर ये जितनी देर जिंदा रहे हैं तो फिर इन्होंने कब्र हुसैन की मजावरी की है। इतना जलीलुल कदर साहब भी है, इसकी फजीलतें इतनी हैं कि मैंने पहले कहा कि एक पूरी मजलिस चाहिए जाबर पढ़ने के लिए। अब हदीस की साथ जनाब जाबर ने रवायत की है और जाबर कहता है कि मैंने किसी सहाबी से नहीं सुनी, मुझे खुद सैयदा ने सुनाई है। रोया जाबर, ये रवायत जाबर से है लेकिन जाबर ने सुना ज़हरा से है। जाबर कहते हैं कि मैंने बीबी सुना। अगर आप आमादा हैं तो फिर मैं हदीस किस्सा पढ़नी शुरू करूँ, अगर आप ज़हनी तौर पे आमादा हैं, क्योंकि हमेशा हदीस किस्सा पढ़ी जाती है, लोग सुन रहे होते हैं लेकिन पढ़ने वाला अरबी में पढ़ रहा होता है, सुनने वालों को नहीं पता होता कि वो क्या पढ़ रहा है, वो एहतराम में बैठे होते हैं। अब मैं हदीस किस्सा आपको उर्दू में सुना देता हूँ। जनाब जाबर कहते हैं कि मुझे शहजादी ने कहा है कि फी बाज़ल अय्याम, चंद दिनों बाद नबी मेरे घर आए। आज की मजलिस को बच्चे जरूर गौर से सुनिएगा। फी बाज़ल अय्याम, चंद दिनों बाद नबी मेरे घर आए। पहला सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जो नबी रोज आया करते थे वो चंद दिनों बाद क्यों आए? रसूल तो रोजाना बीबी के दरवाजे पे आते, तो ये बीबी ने ये जुमला क्यों कहा फी बाज़ल अय्याम, चंद दिनों के बाद मेरे घर आए? जब मैंने तारीख से इसका मुतालिया किया कि वो नबी किसी जंग के लिए गए हुए थे, नबी तजारत की घर से गए थे, नबी मदीने से बाहर थे, तो फिर मुझे तारीख ने बताया कि ये जो हदीस से किस्सा है ये 9 और 10 हिजरी का दरमियानी वक्त था। उस वक्त नबी कहाँ थे? नजरान के ईसाई मदीने आए हुए थे और 3 दिन तक वो मदीना मस्जिद में क़याम पजीर थे। रसूल उनकी मेजबानी कर रहे थे। 3 दिन नबी घर नहीं आए, 3 दिन मुसलसल मस्जिद में बैठ के नजरान के ईसाइयों की मेजबानी भी करते रहे, उन्हें दीन भी बताते रहे। जब तीसरे दिन उन्होंने कोई बात नहीं मानी तो खुदा ने कहा फकुल तआलू नदू अबनाना व अबनाकुम, मेरा हबीब अगर ये नहीं मानते तो फिर इनसे कहे ये बेटे लाएं हम बेटे लाते हैं, ये निसा लाएं हम निसा लाते हैं, ये नफ्स लाएं हम नफ्स लाते हैं। अब रसूल मस्जिद से उठ के बेटी के दरवाजे पे आए। बीबी ने बाज़ल अयाम इसलिए कहा कि 3 दिनों के बाद नबी घर आए। अब जो घर आए हैं बेटी का घर समझ के नहीं आए। अब हदीस की सा आगे चली। नबी पहले आते थे, सलाम करते थे, ज़हरा इस्तकबाल करती थी, नबी माथा चूमते थे, नबी जाके हुजरे में बैठ जाते थे। अब हदीस की सा के जुमले के नबी आए, दरवाजे पर रुक गए। रुक के नबी ने कहा ईतीनी बिलकिसाइल यमानी, ज़हरा मुझे चादर ओढ़ा, ज़हरा मुझे चादर ओढ़ा। इसके आगे हदीस के सामने जुमला का ज़ौफ़ बदनी, नबी ने कहा कि मैं अपने बदन पे कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। पढ़ने वाले ने आपको सुनाया कि रिसालत इमाम माज़ल्ला बीमार थे और बुखार की वजह से कमजोरी महसूस कर रहे थे। मैं 2 अलमों के दरमियान बैठा हुआ हूं। मज़हब अहले बैत में जो बीमार हो जाए वो नबी नहीं होता, क्योंकि बीमारी तब आती है जब जिस्म पे कंट्रोल ना रहे। तो जिसका जिस्म पे कंट्रोल ना हो उसका कायनात पे कंट्रोल कैसे हो सकता है? नबी ने ये नहीं कहा कि ज़हरा मैं बदन पे कमजोरी महसूस कर रहा हूं। नबी ने ज़हरा के दरवाजे पर रुकेगा, ज़हरा रिसालत कमजोरी महसूस कर रही है, रिसालत कमजोरी महसूस कर रही है। अब मेरा मजमा मुझसे पूछे कि रिसालत में कमजोरी कैसे आ गई? नबी ने ज़हरा के दरवाजे में रुक के कहा उसने बेटे मांग लिए मेरे है नहीं, उसने औरतें मांग ली हैं मेरी इस काबिल नहीं। ज़हरा रिसालत कमजोरी महसूस कर रही है, मुझे अपनी चादर उड़ा और मुझे रिश्ते दे। इतना कहना था, बीबी ने अपनी चादर उड़ाई। नबी ने कहा अब मैं सुकून महसूस कर रहा हूं। जिसकी चादर नबुव्वत को शिफा दे उसे शरीयत में ज़हरा कहे। बादशाह हुसैन इज़्ज़त, इंतहाई रूहानियत वाली मजलिस, इंतहाई नूरानियत वाली मजलिस। पहला ही राज आपने इंतहाई मोहब्बत के साथ सुना। पहला ही जुमला आपको बड़े अच्छे तरीके से वसूल हो गया। बाज़ल अयाम नबी मुबाहला के लिए तैयारी कर रहे थे। दूसरा राज नबी ने यह नहीं कहा कि मेरा जिस्म कमजोर हो गया है, रिसालत को रिश्ते चाहिए। 2 राज पढ़िएगा जी। तीसरा राज पढ़ते हैं। अब बीबी ने चादर उड़ाई और नबी घर में चादर लेके बैठ गए। ये चादर नबी की नहीं थी। चले मैं जुमला तब्दील करता हूं। जिसके कांधे पे खुद कमली थी, मुझे नहीं किताबों में मिला कि नबी कोई ऐसा लम्हा था जब, क्योंकि अरबों में अबा लिबास थी, चादर नबी के दोष में मौजूद थी। नबी ने अपनी चादर लेके नहीं बैठे,
ज़हरा तू मुझे चादर ओढ़ा। कमली वाले ने सैयदा से चादर मांगी, सैयदा ने चादर दी, नबी चादर के नीचे बैठ गए। आगे चले जी। अब पहला शहजादा सिहने इस्मत में दाखिल हुआ। हदीस के साथ शुरू हो चुकी जी। उसने आते कहा इन्नी अशम्मु इंदा का राहतन तय्यबा, अम्मा कहीं से नाना की खुशबू आ रही है। ये बात ज़हन में रखिएगा जलालपुर वालों, नबुव्वत जब भी पहचानी जाए खुशबू से पहचानी जाती है। यही वजह थी कि हिजरत की रात बिस्तर पे अली को सुलाया, क्योंकि अली के जिस्म से भी वही खुशबू आती थी जो मोहम्मद के बदन से आती थी। अम्मा कहीं से नाना की खुशबू आ रही है। इन्नी अशम्मु इंदा का राहतन तय्यबा कअन्नहा राहतु जद्दी रसूल अल्लाह, अम्मा ये खुशबू मेरे नाना की है। इतना कहना था या बीबी ने इशारा किया, चादर के नीचे है रसूल। अब हसन चलते चलते चादर के करीब है। अस्सलामु अलैका या जद्दी, नाना बेटे का सलाम। रसूल ने चादर के अंदर से हसन की आवाज सुनी, फरमाया अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फुआदी, ओ मेरी आंखों की ठंडक, ऐ मेरे दिलो जान के मेवा, तुझ पे मेरा सलाम। हल अताज़ुनी अदखुल माअका तहतल किसा, नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? रसूल ने इजाजत दी। अब हसन भी चादर के नीचे आ गए। अब दूसरा शहजादा सिहन में आया। सवाल फिर वही हुआ, इन्नी अशम्मु इंदा का राहतन तय्यबा, अम्मा कहीं से नाना की खुशबू आ रही है। फरमाया सिर्फ नाना नहीं, भाई भी चादर के नीचे है। अब हुसैन चलते चलते चादर के करीब आए। अस्सलामु अलैका या जद्दी रसूल अल्लाह, नाना बेटे का सलाम। आवाज़ अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फुआदी। फिर रसूल को पता चला ये हुसैन है। फरमाया या शाफिया उम्मती, हाय हाय, ऐ मेरी उम्मत की शिफात करने वाले, जिसे अल्लाह शाफे बनाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसे मुस्तफ़ा शाफे बनाए उसे हुसैन कहते हैं। या शाफे उम्मती, हुसैन तुझ पे मेरा भी सलाम। इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? इजाजत मिली। हुसैन पहले हदीस किसा के ये जुमले सुनिएगा, रात से पर्दा मैं बाद में उठाता हूं। अब अमीरुल मोमिनीन आ गए। फरमाया शहजादी यहां से रसूल की खुशबू आ रही है। फरमाया सिर्फ नबी नहीं, दो बेटे भी चादर के नीचे। अली आए, चादर के नीचे चले गए। अब यहां तक हदीस के साथ इतनी सुनिएगा। अब राज सुनिएगा। हसन आए, पूछा अम्मा नाना कहां है? हुसैन आए, सैयदा से पूछा नाना कहां है? अली आए, सैयदा से पूछा रसूल कहां है? इतने पढ़े लिखे मजमे में सवाल कर दो, जिसने सबसे पहला सवाल किया हसन ने। ये वही इमाम हसन है जो मां की गोद में बचपन में लोहे महफूज पढ़ता था, जो फर्श में बैठ के अर्श देखता था, उसे घर में नाना नजर क्यों नहीं आया? जो वहां बैठ के लोह महफूज पढ़ता था, उसने ज़हरा से क्यों पूछा? शायद ये तीन हुज्जत ज़माने को बताना चाह रही है कि ज़हरा है क्या। हसन ने बीबी से पूछा, हुसैन ने बीबी से पूछा, अली ने ज़हरा से पूछा। जिस अली ने पूछा वो सलूनी का दावा करता है, जिस हुसैन ने पूछा वो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ता है, जिस हसन ने पूछा वो माँ की गोद में लोह पढ़ता है। हसन भी इमाम, हुसैन भी इमाम, अली भी इमाम। इमाम कहते हैं रस्ता मुतजस्सवान मुकम्मल। मौजू पसंद है या नहीं है? हसन ने भी सैयदा से पूछा, हुसैन ने भी सैयदा से पूछा, अली ने भी सैयदा से पूछा। अगर आपकी दिलचस्पी मौजू में है तो अगला नतीजा इससे भी खूबसूरत देने लगाऊं। हुसैन ने इजाजत मांगी तो चादर के नीचे गए, हसन को इजाजत मिली तो चादर के नीचे गए। अली जैसे इमाम को रसूल ने इजाजत दी तो वो चादर के नीचे आए। अब मेरा मजमा मुझे बोल के बताए, ये वही हुसैन नहीं है जो रसूल सजदे में था तब पुश्त पे आगे बैठ गया था? तब तो कांधा पकड़ के नहीं पूछा कि नाना इजाजत है मैं तेरी नमाज में आ जाऊं? नमाज में बगैर इजाजत के चादर में इजाजत मांगे, इसका मतलब है वो नमाज किबरिया है, ये हिजाब किबरिया।